in the consonants. Here I'll be telling you about English consonants. Consonant speech sounds are produced by moving articulators within the vocal tract. Lips articulators क्या होते हैं जिनकी मदद से हम बोलते हैं, जैसे कि lips, teeth, upper jaw and the soft part of our mouth. So that I'll be telling you by a diagram. That's a very important diagram. You see it first. These are the vocal organs that helps you to speak. The first of all, our teeth, our tongue, that you know, lower lip, upper lip. Some is, you know that you have studied phonetics, and in phonetics we make the children speak. So p कैसे बोलते हैं? We speak p with the help of both the lips. P. We speak t. T. So we speak T with our tongue touches the upper jaw. Then we speak M. That sounds comes with the nose organ. So all these organ make up and help us to speak. So this helps us in the phonetics. This helps us in the articulatory organs. This is also called. And then comes the part, the larynx. What is larynx? Is that it's a kind of door that when we eat food, when we take up the food, this door is closed and the food goes down to the food pipe, and when we speak, this door is opened so that we can communicate. Okay, so that was the function of all these parts. Here I'll be telling you about the consonants. सो कॉन्सोनेंट्स, पहले तो साउंड्स पे आते हैं. साउंड, देर आर नो वन टू वन रिलेशन बिटवीन द सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. देन इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड्स completely produced by stopping the air. Okay, vowels and consonants are different. In English there are 26 alphabets, but according to phonetics there are 44 sounds. So what are these sounds? Let me explain the importance. It's a speech produced by completely or partially stopping the air. It's a speech sound according to Cambridge University and according to Hornby. You can make the notes accordingly. Consonant is a sound that articulated with partial closure. Suppose P, हमने हल्की से हवा, लंग से आती हुई हवा को रोका, and that was a partial exposure. ठीक है. Then T, with the front of the tongue, H, or air passed from the throat. Then we move on to pharynx. Pharynx is a tube 7 cm long in women and 8 cm in men. Pharynx is the tube which helps us to opened mouth and speak. Speech sounds can be classified in articulatory, auditory, transmission and reception sound. कॉन्सोनेंट्स के प्लेसेस क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स का जो मेन प्लेस है वो ये मैंने आपको फिगर में बताया हुआ है. बायलैबियल एंड लैबियोडेंटल. लैबियोडेंटल मतलब दांतों से जब हम छूते हैं किसी चीज़ को, किसी, और बायलैबियल मतलब जब हम लिप्स के थ्रू बोलते हैं, दैट इज़ बायलैबियल. आर्टिकुलेटर्स जब दो लिप्स होते हैं जैसे कि पी, बी, एम, दैट इज़ बायलैबियल. तो ये आर्टिकुलेटर्स जो है ये कॉन्सोनेंट्स के पार्ट्स हैं. कॉन्सोनेंट्स को और हम डिवाइड करें तो वो एयर स्ट्रीम और मैनर या स्टेट ऑफ ग्लॉटियस. ग्लॉटिस जो है हमारे गले के बीच में होता है, आपने मोस्टली देखा होगा दैट जेंट्स हैव मतलब बड़ा सा ग्लॉटिस हो जाता है. अब हम आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन पे. ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स और लिप की शेइंग, मोनोप्थोंग्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो वॉवल साउंड क्या होती है? जो ऑडिबल फ्रिक्शन विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन एंड नैरोइंग ऑफ अ डिग्री ऑफ द फार्नेक्स एंड माउथ इज वॉवल साउंड. ये बहुत ही डिफरेंट कर सकते हैं, जैसे कि वॉवल को हम बीच में भी यूज़ करते हैं, वॉवल को हम एक शब्द के स्टार्टिंग में भी यूज़ करते हैं. सपोज व्हेन आई से सिट, दैट, यहाँ पे वॉवल कहाँ हुआ? बीच में, मिडिल में यूज़ हुआ. व्हेन आई से आई कहाँ पे यूज़ हुआ?
बिल्कुल ही एक ही ऑल अलोन वॉवल यूज़ हुआ। सो वॉवल्स को हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, लॉन्ग वॉवल, शॉर्ट वॉवल, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ वॉवल साउंड्स कैसे, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है। अब फिर वो हम और उन्हें क्लासीफाई करें तो प्योर वॉवल, डिप्थोंग्स, सिंगल वॉइस, इस तरीके से हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ इसको इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को किसने दिया है। जॉन सी वेल्स हैज़ गिवन क्लासीफाइड दिस वॉवल साउंड्स इनटू 24 लेक्सिकल सेट्स। ज़्यादा यू डोंट नीड टू गो इनटू डीप टू अंडरस्टैंड दिस। Then vowel symbols. Let's see the vowels. For example, like in meet and beat. See in this diagram I have given you that how the tongue touches meet, beat. तो टंग इज टचिंग द अपर जो अपर, ठीक है, द हार्ड पैलेट, इस पैलेट को कहते हैं हार्ड पैलेट, इसको टच करती है। इसी तरीके से लाइक, सिक, बिग, इसमें हमारी टंग हार्ड पैलेट को टच नहीं करती है। आई, इसमें हमारा मुंह जो है, लिप्स जो है वो ब्रॉडन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं दो वर्ड्स लेती हूँ जहाँ पे स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वोवल रहते हैं, जैसे कि फ, मर्डर, ठीक है, मर्डर। अब यहाँ पे किस पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, फर और मर्डर में, यहाँ पे फ और मर्डर में हम किस पे स्ट्रेस दे रहे हैं, और पे, ठीक है। इसी तरीके से ये होते हैं फोनेटिक्स के सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस सिंबल के अकॉर्डिंग अगर मैं चलती हूँ तो मुझे इस पे ई आर पे स्ट्रेस देना नहीं है। यहाँ पे अनस्ट्रेस सिलेबल लिखा है, तो मर्डर, मर्डर, ठीक है, मैंने कहाँ पे स्ट्रेस नहीं दिया, ई आर पर स्ट्रेस नहीं दिया, मर्डर, मर्डर। ओके, यू गॉट इट। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश वॉवल्स। हम इन्हें किन किन चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं। फ्रंट वॉवल, ठीक है, बहुत चीज़ें, फ्रंट, बैक, देन इनको हम डिप्थोंग्स में आगे मैं बताती हूँ। तो फ्रंट वॉल कौन से होते हैं, जिसमें टंग जो है आगे की तरफ पुश होती है, जैसे कि हार्ड पैलेट को छूती है, जैसे कि लाई, आई। बैक वॉवल्स होते हैं यू, योर, ठीक है, जिसमें कि टंग ट्विस्ट होती है, रेज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो है आपके, ये सॉफ्ट पैलेट कहाँ होता है, ये पीछे की साइड होता है, हार्ड पैलेट के पीछे की साइड, आप टच करके अपने टंग से देख सकते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल वॉल्स। सेंट्रल जैसे कि ए, इसमें हमें कुछ नहीं, ना लिप्स का मूवमेंट हो रहा है और ना ही हमारे टंग का हो रहा है, तो दैट इज़ अ सेंट्रल वॉल। सेंट्रल पोजीशन, जैसे ए को मिक्स करके हम बहुत सारे वॉवल्स ऑलरेडी सेंटेंस बनाते हैं। वॉवल क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है कि हाइट ऑफ द टंग जो है माउथ में, ये होता है पार्ट ऑफ द टंग जो रेज होता है, फ्रंट, मिडिल, बैक, कन्फिगरेशन ऑफ लिप्स, टेंशन ऑफ द मसल्स, ठीक, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द वॉवल्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू सिंगल वॉइस साउंड लाइक टुक। अब डिप्थोंग्स हम देखते हैं जिनमें हम दो वॉवल्स को रिक्रिएट करते हैं मिलाकर। सो जैसे कि लुक, टुक, राइट, तो दैट इज कॉल्ड डिप्थोंग्स। मोनोथोंग्स या कहलाते हैं प्योर वॉवल्स, जैसे कि नीचे इस लाइन में दिए हुए हैं, यू, ए, आई, ठीक है, दीज आर कॉल्ड मोनोथोंग्स। राउंड वॉवल्स वो होते हैं जिन्हें बोलते समय हमारा मुंह का शेप जो है वो गोल हो जाता है। फॉर एग्जांपल यू, तो हमारा शेप लिप्स का गोल हो गया। स्प्रेड वॉवल्स, जिसमें हमारे पूरे लिप्स जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल से चीज़, चीज़, तो चीज़ में हमारे पूरे लिप्स जो है स्प्रेड हो गए हैं। न्यूट्रल वॉवल्स है ए, जिसमें कोई हमारा न्यूट्रल रहता है, कोई भी लिप की शेप चेंज नहीं होती है। अब आती हूँ मैं एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी पे, दैट यू कैन टीच योर चिल्ड्रन विद वॉवल्स। लाइक यहाँ पे देखिए, किसी का नाम है आफरीन, सो यू कैन पुट हर नेम इनटू ग्रीन, आफरीन, ग्रीन। लाइक किसी का नाम है मलय, टॉय,
दिस कलर इज टर्कोइज, इसमें आप कलर भी सिखा रहे हैं और बच्चों के फोनेटिक्स की क्लास भी ले रहे हैं। टर्कोइज टॉय, मलाय, राइट। इसी तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स बच्चों को सिखा सकते हैं, जैसे कि ऊन, मून एंड ब्लैक, नेक, सैक। इस तरीके से आप बच्चों को इस एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारे, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने दिया हुआ है वुडन हुक, इसी तरह से हुक, लुक, टुक, right? And you can make this activity more interesting by adding your ideas. Thank you very much. Bye students.